بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک عظیم الشان حکومت عطا فرمائی تھی۔ آپ کی حکومت ہواؤں پر تھی۔ آپ ہوا کو جہاں حکم فرماتے تھے وہ ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر وہاں پہنچا دیتی تھی، اور جن و انسان اور پرندے سب آپ کے تابع اور لشکری تھے۔ آپ حیوانات کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے حرم شریف مکہ معظمہ میں پہنچنے کا عزم فرمایا۔ چنانچہ تیاری شروع ہوئی اور آپ نے جنوں، انسانوں، پرندوں اور دیگر جانوروں کے ساتھ چلنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ عظیم لشکر تقریباً 30 میل میں پورا آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تو ہوا نے تخت سلیمانی پر اس لشکر عظیم کو اٹھایا اور فوراً حرم شریف میں پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حرم شریف میں کچھ عرصہ ٹھہرے۔ اس عرصے میں آپ مکہ معظمہ میں ہر روز 5000 اونٹ، 5000 گائے اور 20,000 بکریاں ذبح فرماتے تھے، اور اپنے لشکر میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت سناتے رہتے تھے کہ اس ملک سے ایک آخری نبی ہوں گے جو تمام نبیوں میں افضل ہوں گے اور تمام نبیوں کے سردار ہوں گے۔ ان کی امت تمام امتوں کی سردار ہوں گی۔ وہ آخری نبی ہوں گے اور جن کے بعد پھر کوئی اور نبی پیدا نہ ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکہ معظمہ میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد صنعاء ملک یمن پہنچے۔ مکہ معظمہ سے صنعاء ملک کا 1 مہینے کا سفر تھا۔ آپ مکہ معظمہ سے صبح کو روانہ ہوئے۔ آپ نے یہاں بھی کچھ عرصہ گزارنے کا ارادہ کیا۔ یہاں پہنچ کر پرندہ ہدہد ایک روز اوپر اڑا اور بہت اوپر جا پہنچا اور ساری دنیا کے طول و عرض کو دیکھا۔ اس کو ایک سرسبز باغ نظر آیا۔ یہ باغ ملکہ بلقیس کا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس باغ میں ایک یمنی ہدہد بیٹھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا نام یافور تھا۔ یافور اور یمنی ہدہد کی حسب ذیل گفتگو ہوئی۔ یمنی ہدہد: بھائی تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ یافور: میں ملک شام سے اپنے بادشاہ سلیمان کے ساتھ آیا ہوں۔ یمنی ہدہد: سلیمان کون ہے؟ یافور: وہ جنوں، انسانوں، شیاطین، پرندوں، جانوروں اور ہواؤں کا ایک عظیم و شان فرمانرو اور سلطان ہے۔ ان میں بڑی طاقت ہے۔ ہوا ان کی سواری ہے اور ہر چیز ان کے تابع ہے۔ اچھا تم بتاؤ کہ تم کس ملک سے ہو؟ یمنی ہدہد: میں اسی ملک کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے اس ملک کی بادشاہ ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس کے ماتحت 12,000 سپہ سالار اور ہر سپہ سالار کے ماتحت 1 لاکھ سپاہی ہے۔ پھر اس نے یافور سے کہا، تم میرے ساتھ ایک عظیم ملک اور لشکر دیکھنے چلو گے؟ یافور: بھائی میرے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے اور انہیں وضو کے لیے پانی درکار ہوگا، اور پانی کی جگہ بتانے پر میں مامور ہوں، اور اگر دیر ہوئی تو وہ ناراض ہوں گے۔ یمنی ہدہد: نہیں، بلکہ یہاں کے ملک اور فرمانرو ملکہ بلقیس کی مفصل خبر سن کر خوش ہوں گے۔ یافور: اچھا تو چلو۔ دونوں اڑ گئے اور یافور ملک یمن کو دیکھنے لگا، اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز عصر کے وقت ہدہد کو طلب فرمایا تو وہ غیر حاضر نکلا۔ آپ بڑے جلال میں آ گئے اور فرمایا، کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا؟ کیا وہ واقع حاضر نہیں ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، یا وہ کوئی معقول وجہ میرے پاس لائے۔ اور پھر آپ نے عقاب کو حکم دیا کہ وہ اڑ کر دیکھے کہ ہدہد کہاں ہے۔ چنانچہ عقاب اڑا اور بہت اوپر پہنچ کر ساری دنیا کو دیکھنے لگا۔ اچانک اسے ہدہد یمن کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ عقاب فوراً اس کے پاس پہنچا اور کہا، غضب ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے
तुम्हारे लिए कसम खाई है कि मैं हुदहुद को सख्त सज़ा दूंगा या ज़ुबा कर दूंगा। हुदहुद ने डरते हुए पूछा, क्या वो मेरी कोई बात सुने बगैर फैसला कर देंगी? उकाब ने कहा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा है कि वो कोई माकूल वजह मेरे पास लाए। हुदहुद ने कहा, तो फिर मैं बच गया। उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। फिर उकाब और हुदहुद दोनों बारगाह सुलेमानी में हाजिर हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रौब व जलाल में फरमाया, हुदहुद को हाजिर करो। हुदहुद बेचारा अपनी दुम को नीचे किए हुए ज़मीन से मलता हुआ और कांपता हुआ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के करीब आया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको सर से पकड़कर अपनी तरफ घसीटा। उस वक्त हुदहुद ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह के सामने अपनी हाज़िरी को याद कर लीजिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह बात सुनकर उसे छोड़ दिया और उसे माफ़ फरमा दिया। फिर हुदहुद ने अपनी गैर हाज़िरी की वजह बयान की। हुदहुद ने कहा, मैं एक बहुत बड़ी हुकूमत देखकर आ रहा हूँ। इस हुकूमत की एक मलका है जिसका नाम मलका बिल्किस है। खुदा ने उसे हर किस्म का सामान, ऐश व इशरत दे रखा है, पर वो अल्लाह को नहीं मानती, आग और सूरज की परस्ती करती है और उसका एक बहुत बड़ा तख्त है। रिवायत में आता है कि ये तख्त सोने और चांदी का बना था और बड़े बड़े कीमती जवाहरात से मर्ज़े था। इसका एक मजबूत घर था, जिस घर में दूसरा घर था, फिर उस दूसरे घर के अंदर तीसरा घर था, फिर उस तीसरे घर के अंदर चौथा घर था। इसी तरह इसमें पांचवा और पांचवे में छठा और छठे में सातवां घर था। इस सातवें घर में वो तख्त था और 7 गिलाफ इस तख्त को चढ़ा रखे थे। इस तख्त के 4 अदद पाए थे। एक पाया सुर्ख याकूत का, दूसरा जर्द याकूत का, तीसरा सब्ज याकूत का और चौथा सफ़ेद मोती का था। ये तख्त 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, 30 गज ऊंचा था। बिल्किस 7वें घर के अंदर रखे हुए इस तख्त अजीम पर बैठा करती थी। हर घर के बाहर सख्त पहरा था और बिल्किस तक पहुंचना एक दुश्वार अम्र था। हुदहुद ने जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को बिल्किस की बात सुनाई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा ये ख़त ले जाओ और बिल्किस को पहुंचाओ। आपने एक ख़त लिखा जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर लिखा, मेरे मामले में बड़ाई ज़ाहिर ना करो और मुसलमान बनकर मेरे सामने हाजिर हो जाओ। और इस पर शाही मोहर सुपुर्द करके हुदहुद को दे दिया। हुदहुद गया और 7वें किलो के पहरों से बेनियाज होकर नबी की ये चिट्ठी रिसा रोशनदानों में से गुजारता हुआ बिल्किस तक जा पहुंचा। बिल्किस उस वक्त सो रही थी। हुदहुद वो ख़त बिल्किस के पास रखकर निकल आया। बिल्किस जब उठी तो ये ख़त पढ़कर घबराई और आयान सल्तनत से मशवरा तलब किया कि क्या किया जाए। इस सल्तनत के लोग बोले, आप डरती क्यों है? हम ज़ोर व ताकत वाले और लड़ने वाले माहिर हैं। सुलेमान अगर लड़ना चाहते हैं तो लड़ेंगे, हम शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। आइंदा जो आपकी मर्ज़ी। मलका बिल्किस ने कहा, जंग अच्छी चीज़ नहीं है। बादशाह जब किसी शहर में अपने ज़ोर व कुव्वत से दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं सुलेमान की तरफ एक तोहफ़ा भेजूं, फिर देखूंगी सुलेमान उसे कबूल करते हैं या नहीं। अगर वो बादशाह है तो तोहफ़ा कबूल करेंगे और अगर नबी है तो मेरा तोहफ़ा कबूल नहीं करेंगे। चुनांचा बिल्किस ने 500 गुलाम, 500 बांदिया, बेहतरीन रेशमी लिबास और जेवरात के साथ सजाकर उन्हें ऐसे घोड़ों पर बिठाया जिनकी काठियाँ सोने की और लगामें जवाहरात से बनी हुई थी, और 1000 सोने और चांदी की ईंटें और एक ताज जो बड़े बड़े कीमती मोतियों से बना था, वगैरह वगैरह सामान एक खत अपने कासिद के साथ रवाना किए। हुदहुद ने यह तैयारी देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारा किस्सा सुनाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जिन्नी लश्कर को हुक्म दिया कि सोने चांदी की ईंटें बनाकर 6 मील सोने चांदी की सड़क बना दी जाए
और सड़क के इधर उधर सोने और चांदी की बुलंद दीवारें खड़ी कर दी जाए और समंदर के जो खूबसूरत जानवर है, इसी तरह खुशकी के भी जो खूबसूरत जानवर है, वो सब हाजिर किए जाए। चुनांचे आपके हुक्म की तामील फौरन की गई। 6 मील सोने चांदी की सड़क बन गई। इस सड़क के दोनों तरफ सोने चांदी की दीवारें भी बन गई और खुशकी व तरी के खूबसूरत जानवर भी हाजिर कर दिए गए। और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त के दाएं जानिब 4000 सोने की कुर्सियाँ और बाएं जानिब 4000 सोने की कुर्सियाँ रखवाई और उन पर अपने मुकब्बरीन व खवास को बिठाया और अपने जिन्नी लश्कर और इंसानी लश्कर को दूर तक सब ब सब खड़ा कर दिया और वहशी जानवरों और दरिंदों और चौपाइयों को भी सब ब सब खड़ा कर दिया। इस किस्म का शाही दबदबा व जलाल और इस शान व शौकत की हुकूमत चश्मे फलक ने कभी देखी ही नहीं थी। मलका बिल्किस का कासिद अपने जहन में ये सोच के मैं बड़ा कीमती तोहफा ला रहा हूँ, मगर जब उसने सोने चांदी की बनी हुई सड़क पर कदम रखा और इर्द गिर्द सोने चांदी की दीवारें देखी और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम की जाह व इज़्ज़त और शान व शौकत के नज़ारे देखे तो उसका दिल धक धक करने लगा। शर्म के मारे पानी पानी हो गया और सोचने लगा कि मैं ये बिल्किस का तोहफा किस मुँह से सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करूँगा। बहरहाल जब वो बारगाह सुलेमानी में पहुंचा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम लोग माल व दुनिया से मेरी मदद करना चाहते हो? तुम लोग अहले मफाखिरत हो, दुनिया पर फ़ख्र करते हो और एक दूसरे के तोहफे व हदिये पर खुश होते हो। मुझे न दुनिया से खुशी होती है न इसकी हाजत से। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है और इतना दिया है कि औरों को ना दिया, बावजूद इसके कि दीन व नबूवत से मुझको मुशर्रफ फरमाया है। लिहाजा ऐ बिल्किस के कासिद, पलट जाओ और ये अपना तोहफा ले जाओ और जाकर कह दो कि अगर वो मुसलमान होकर मेरे सामने हाजिर नहीं हुई तो हम उस पर वो लश्कर लाएंगे कि उसके मुकाबले की उसे ताकत ना होगी और हम उसे जलील करके शहर से निकाल देंगे। बिल्किस का कासिद ये पैगाम लेकर वापस पलटा और बिल्किस को सारा किस्सा तफसील से सुनाया। बिल्किस ने गौर से सुना और वो बोली, बेशक वो नबी है और उससे मुकाबला करना हमारे बस का काम नहीं। फिर उसने आयान सल्तनत से मशवरा तलब करने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में खुद हाजिर होने का इरादा कर लिया। हुदहुद ने यह सारी खबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जाकर पहुंचाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में ऐलान फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो मुझसे मिलने आ रही है। कौन है जो उसके आने से पहले वो मलका मेरे पास आ रही है? पैगाम मैंने तौहीद का पहुंचा दिया है, मेरी रिसालत का पहुंचा दिया है, मेरी नबूवत का पहुंचा दिया है। अब वो आ रही है। उसके आने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि उसका वो शाही तख्त मेरे पास आ जाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 19वें पारे में सूरह नमल में आयत नंबर 38, 39, 40 हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यातीनी बि अर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, मेरे पास आ रही है, मेरे पास आकर मुसलमान बनेंगी। मैं चाहता हूँ कि उसके आने से पहले उसका तख्त मेरे दरबार में हो, वो मेरी शान देखकर मुसलमान बने। क़ाला इफ़रैतुम मिनल जिन्नी अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। एक जिन खड़ा हुआ। जिन ने कहा, हुजूर मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपकी बारगाह में वो तख्त आपके उठकर बैठने से पहले हाजिर कर दूंगा। उठकर खड़े होकर बैठने में जो वक्त लग रहा है, उस कलील वक्त में वो तख्त आपके कदमों में होगा। व इन्नी अलैहि लिक़विय्युम अमीन, अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, जिन नहीं चाहिए। कहा, अगर जिन मेरा ये काम कर जाएगा, लोग कहेंगे वो तो जिन्नात है, अल्लाह ने उसे ताकत दी है, वो कभी इधर जा सकता है, कभी उधर जा सकता है। इंसान से ज़्यादा ताकत जिन्नात के पास है। नहीं, जिन नहीं चाहिए। यहाँ इन्होंने कहा जिन नहीं चाहिए। वहाँ आपके गुलाम आसिफ बिन बरखिया जो इंसान है,
کھڑے ہوئے آپ کے غلام آصف بن برقیہ جو انسان ہے کھڑے ہوئے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، حضور اشارہ ہو تو مجھے حکم دیجیے۔ فرمایا حضور میں آپ کا خادم ہوں، میرے پاس اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے، آپ ہی کے صدقے مجھے تصرف ملا، آپ ہی کے صدقے۔ فرمایا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرف، حضور یہ تو بہت دور کی بات ہے، کھڑا ہو کر بیٹھنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے غلام آصف بن برقیہ کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکی اور اٹھی، دیکھتے کیا ہے بلقیس کا وہ تخت آپ کے قدموں میں ہے۔ پھر ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آپ کی شان دیکھ کر مسلمان ہو گئی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔